screen. So in today's session, I am going to cover chapter number 6, that is triangles of standard 10. Once again, I will tell this to each and every students sitting here, right? For security reasons, I have turned off your audio and video. You can communicate through chat if you want to ask any question or something. You can take screenshot also. And at the end of this session, I'm going to provide the same video in my YouTube channel also. So if in case, if somewhere your network skips or something, you can watch there, okay? So let us continue this. So chapter number 6, that is triangles, has total weightage of 6 marks with general option and without general option, and with general option it has 10 marks. Now what you understand from this time Gujarat board is giving general option also. That means you have seen that you have 4 mark questions. It is not that previously your paper was as such like this, that you were given one question and then it was given or and then another question like this, right? But now they have mentioned it like this, that there will be total 8 question in 4 mark section, out of which you have to attend only 5. So you can attend, and these 8 questions I will explain you. 2 will be from chapter 6. I think you all know this, right? 2 questions will be from chapter 6. Then once I'm saying this, 4 mark questions, okay? 2 questions will be from construction. See, I will explain. This will make you study more easier. बाकी फिर कुछ करो ही मत 4 mark questions के लिए. 2 questions from chapter 11, that is construction. Then you will have one question. Again, you have 2 questions from chapter number 14, that is statistics. And 1 question each from chapter number 9, that is application to trigonometry, and 1 question from surface area and volume, that is chapter number 13. So from this 8 questions, we have to attempt only 5 questions. And I will tell you, these questions you all should attend only from these chapters. Rest chapters पे इतना फोकस मत करो. देखो, एक आप अटेंड कर लो चैप्टर नंबर 6 के दोनों क्वेश्चन. You all know this, which questions are from chapter number 6? These two theorems. That is theorem number 6.6 and 6.8. यही 2 क्वेश्चन फंसेंगे डेफिनेटली. कोविड कंडीशंस को ध्यान में रख के अगर देखा जाए तो यही 2 क्वेश्चंस आने के पूरे चांस है, राइट? तो 2 क्वेश्चन तो यहां हो गए. यू ऑल आर वेरी गुड इन कंस्ट्रक्शन चैप्टर. तो 2 क्वेश्चन यहां निकाल लिया आपने. और मुझे इतना श्योर है कि स्टैटिस्टिक्स का 1 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे. तो 5 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे और यहां से 20 मार्क एक भी बच्चे के नहीं जाने चाहिए. सो दिस 20 मार्क्स आर योर्स, ओके? तो ये 20 मार्क आपको टारगेट करना है. सबसे पहले इसको आज कल में ही कंप्लीट कर लेना है, राइट? सिंपल सी बात है. देखो, मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 6 से 2 क्वेश्चन, ठीक है? डैम श्योर 4 मार्क क्वेश्चन इसमें से ही होंगे, ये 5 क्वेश्चन में से ही. बिकॉज कोविड टाइम चल रहा है तो ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं देंगे आप लोगों को, ठीक है? उस चीज को ध्यान रखना है. यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं, यही क्वेश्चन हमें कर लेना है, ओके? सो देख लेते हैं यहाँ पे. और टोटल 10 मार्क है विथ जनरल ऑप्शन, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पे चैप्टर का वेटेज कैसे जा रहा है देखो. 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे बस.
2 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑफ 1 मार्क फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। और 4 मार्क के क्वेश्चन में आएंगे 2 क्वेश्चन जो मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो यही इतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से। ज्यादा लोड नहीं लेना, ट्रायंगल में क्या होगा बाहर से क्या नहीं, कुछ नहीं होगा। बस ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं आपको, और ये 2 थियरम आपको कर लेना है। तो यहां से आपने बोर्ड में स्कोर कर लिया 10 मार्क्स, राइट। इतने से क्वेश्चन से तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाया जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसा, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। When two figures have same shape and same and size, they are dash. So they are congruent figures, okay? 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कब कहलाते हैं? जब उनके शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर शेप एक जैसे है, साइज एक जैसे नहीं है, देन दे आर सिमिलर फिगर, ठीक है। सिंपल सी बात है, 2 स्क्वायर ले लेते हैं यहां पर जिनका मेजरमेंट सेम होगा, राइट। मैंने यहां पे ले लिया 2 स्क्वायर जो 4 सेंटीमीटर साइड के, और एक स्क्वायर और ले लेता हूं मैं जो 6 सेंटीमीटर साइड का है। तो ये जो फिगर ए है और फिगर बी और फिगर सी लिख देता हूं मैं यहां पर। तो फिगर ए, फिगर बी, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जबकि फिगर बी और फिगर सी को अगर कंपेयर करूं, सो दीज आर सिमिलर फिगर, राइट। सिंपल सी बात है, यहां पे हमने क्या कहा है, देखो, व्हेन टू फिगर्स हैव सेम शेप, उन दोनों का शेप एक जैसा हो। मैंने क्या बोला, देखो ये भी स्क्वायर है, राइट, ये बी वाला भी स्क्वायर है और सी वाला भी स्क्वायर है। तो अगर उनका शेप सेम हो, साइज भी सेम हो, देखो इनका साइड भी 4 सेंटीमीटर है, इसका साइड भी 4 सेंटीमीटर है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो ए एंड बी स्क्वायर जो है वो दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में इस तरीके का सिंबल यूज करते थे हम, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। नाउ सिमिलर फिगर क्या होगा, देखो बी और सी की बात करूं तो दोनों स्क्वायर है, राइट। तो हमने सबसे पहले ही कहा, देखो हैव द सेम शेप। सिमिलर मींस दैट द फिगर हैव द सेम शेप। तो बी और सी का जो शेप है वो सेम है, दोनों स्क्वायर है, बट नॉट द सेम साइज। देखो ये 4 सेंटीमीटर साइड वाला है तो छोटा दिख रहा है, राइट, साइज इसकी छोटी है, और ये 6 वाले की साइज थोड़ी सी बड़ी है। तो इनकी साइज सेम नहीं है, दैट इज वाई दिस 2 फिगर बी एंड सी आर सिमिलर फिगर्स। दिखने में एक जैसे हैं बट छोटे बड़े हो सकते हैं। तो हियर आई हैव रिटन इन द एंड, सिमिलर फिगर्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। नेक्स्ट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट अभी तक तो सबने लर्न कर लिया होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन सेशन चल रहा है, एक बार इसको दौड़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर, मान लो एक सर्कल है यहाँ पर आपके पास ऐसा, और एक सर्कल थोड़ा बड़ा है। ये दोनों सर्कल कैसे दिख रहे हैं आपको? शेप इनका सेम है ना, सर्कल है, साइज अलग अलग है। सो ऑल सर्कल्स आर, क्या बोल सकता हूं मैं, सिमिलर, राइट। बहुत बढ़िया नित्या, चिराग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है, ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर की बात करूं, वंस अगेन एक बार स्क्वायर का देख लेते हैं केस। एक छोटा स्क्वायर ले लिया मैंने, एक बड़ा स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर के केस में भी यस एग्जैक्टली, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट हमारा जो है, देखो, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्या होगा यहां पर आंसर? आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? इक्विलैटरल, बहुत बढ़िया है ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस छोटा बड़ा भी हो सकता है। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ये इसके आंसर ही लिखे हुए यहां पर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो सिमिलर होगा, और करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताना है तो शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग अलग होनी चाहिए।
तो हम यहाँ पर बस मेंशन करके दिखा देंगे इनको, ठीक है भाई, शेप सेम है पर साइज अलग अलग दिखा देंगे। जैसे मान लो मैं ऐसा कह देता हूँ कि मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों इक्विलेटरल है, ठीक है, तो थोड़ा ऐसा छोटा बड़ा बना देता हूं मैं। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास और दोनों का साइड अलग अलग ले लेते हैं, एक का 2 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर, तो ये बन गया सिमिलर फिगर, ठीक है। दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दोनों का मेजरमेंट अलग ले लिया मैंने। दो स्क्वायर ही ले लेता हूं मैं, एक 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेता हूं मैं और एक 4 सेंटीमीटर साइड वाले का स्क्वायर ले लेता हूं मैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर बताने हैं तो शेप भी अलग कर दो, शेप ही अलग कर दो तो सिंपल वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। देखो नॉन सिमिलर फिगर में एग्जांपल देना है तो यहां मैंने दे दिया एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम, बिल्कुल शेप ही अलग दिख रहा है, देखो, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलियन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, तो स्केलियन में कोई इक्वल नहीं होता, तो कुछ ऐसा भी ले सकता हूं मैं इस तरीके का। तो ये दोनों तो शेप में भी अलग है, तो ये क्या होंगे, नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो सिंपल सी बात है, हमने सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या रखी थी कि एंगल भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, है ना। तो यहां पर देख सकता हूं मैं, एंगल ही पहली बात इक्वल नहीं है, देखो, राइट। साइड्स तो चलो प्रोपोर्शन में, ये 1.5 है, यहाँ 3 है, तो डबल हो रहा है, 1.5 का डबल, है ना, 3। ये भी 1.5 है तो उसका डबल हो रहा है, ये 3। तो हर तरफ मैं देख रहा हूँ साइड्स जो है प्रोपोर्शन में, हर एक साइड जो है वो डबल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो सही है। बट एंगल की बात करूं तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, बट यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है कि 90 है या नहीं, राइट। तो साइड्स तो प्रोपोर्शन में है बट एंगल आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनमें क्या होता है बताओ, सिमिलर फिगर की दो कंडीशन है। सबसे पहले उसके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और साइड्स जो है वो कैसे होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शन होने चाहिए, ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमिलर फिगर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, चलो एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब इसके अपॉन ये जो कर रहा हूं मैं 1.5 डिवाइड बाय 3, क्या मिलेगा मुझे, 1.5 का डबल, 1.5 1 जा 1.5 और ये 1.5 2 जा 3, 1/2 मिला। तो ऐसे ही अगर इस साइड को भी मैं डिवाइड में लूं 1.5 डिवाइड बाय 3, तो भी मुझे सेम रेशियो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 1/2। अगर ऐसा हर एक केस में है, इस साइड के साथ भी है, इस साइड के साथ भी है, तब साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, ओके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ देखो 6.1 से तो बस इतना ही आने वाला है, तो ये एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट आई थिंक सबका क्लियर हो गया। किसी को 6.1 में डाउट हो सो दे कैन आस्क। एनी डाउट इन 6.1 एक्सरसाइज? 1 मार्क से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 6.1 एक्सरसाइज 1 मार्क का ही है, बस एक ना एक क्वेश्चन वहां से फंसने वाला है। अब आ जाते हैं 6.2 एक्सरसाइज पे। यहां पर इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक थ्योरम की सिर्फ कंडीशन हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो थ्योरम ये कहता है, देखो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और मान लो कि कोई लाइन है जो यहां से पास हो रही है, ठीक है, और ये दो साइड्स अगर प्रपोर्शन में आ जाते हैं, प्रपोर्शन में मतलब ये मान लो ये साइड ए है, मतलब ये इतना पार्ट ए है, ये इतना पार्ट बी है, दिस इज सी, दिस इज डी। अगर ऐसा हो जाता है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन इन दैट केस ये जो लाइन हमने बनाई है ना, ये लाइन मान लो ये लाइन एल और ये लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन एम, ये दोनों लाइन होगी पैरेलल, ठीक है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमें सिर्फ स्टेटमेंट जानने की जरूरत है, उतना डिटेल में वो चीज है भी नहीं, हमें सिर्फ दो क्वेश्चन दिया हुआ इस एक्सरसाइज से। सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ दिस इज माय ट्राइंगल, ओके, और कोई लाइन है जो इस ट्राइंगल को क्या कर रही है, ट्राइंगल से होकर गुजर रही है, सपोज दिस लाइन इज एल और ये जो इसका बेस है से दिस इज एम, ओके। तो एल पैरेलल टू एम होगा
तो हमारे पास एक कंडीशन हो जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर, ये ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी और डी, तो ए बाय बी किसके इक्वल होगा? सी बाय डी के। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है आपको कि L इज पैरेलल टू M, और अगर ये दिया हुआ है तो ये होगा, मतलब दोनों चीजें हैं। दिस लाइन L विल बी पैरेलल टू M इफ दिस इज गिवन टू यू। अगर ऐसा कहा गया L इज पैरेलल टू M, देन ये होगी चीज। यस, थियरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ दिस लाइन इज ड्रॉन राइट पैरेलल टू दिस साइड, वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने यहां पे बनाया L इज ड्रॉन पैरेलल टू M। ओके, सो हियर इट इज written, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides, the other two sides are divided in same ratio। 6.1 में कुछ नहीं है रचित, 6.1 एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ उतना ही है, ऑब्जेक्टिव्स बस, सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर बस। तो ये चीज है, अगर लाइन पैरेलल है, सिंपल सी बात है, इस ट्राइंगल के अंदर, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट बस ध्यान में रखना है। अगर एक ट्राइंगल है, उसके बीच में से कोई लाइन पास हो रही है, सपोज ये लाइन L, और ये लाइन इस थर्ड, यहाँ पे इस साइड के, मतलब मान लो पैरेलल है, ये जो साइड है इसको मैं मान लेता हूं M, ठीक है, ये वाली साइड, ये बेस वाली साइड। सो इफ L इज पैरेलल टू M, देन दिस टू साइड जो बचे हैं ना, वो डिवाइड हो जाएंगे सेम रेशियो में। मतलब ये लाइन इसको कट कर रहा है A और B में, और यहाँ पे कट कर रहा है C और D में, देन सिंपली A बाय B विल बी इक्वल टू C बाय D। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना सा रिमेंबर रखना है आप लोग को, इतना सा याद रखोगे, सो वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो 6.2 में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया है, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन इन फिगर 6.17, दिस इज द फिगर, यहाँ पे दो फिगर है आपके पास, ठीक है। 6.17, DE इज पैरेलल टू BC, ये दो लाइन पैरेलल है, देखो ध्यान देने वाली बात है, दिस DE इज पैरेलल टू BC। मैं अभी अभी कह रहा था, देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमें दिया हुआ है पहले से दैट DE इज पैरेलल टू BC, तो आपको याद रखना मैंने क्या बोला था, ये A होगा, ये B, ये C और ये D, हमें फाइंड करना है EC। ओके, फर्स्ट केस में EC फाइंड करना है, यस। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अगर लाइन पैरेलल है, देन अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम A बाय B इक्वल टू C बाय D। वैल्यू रख दो, यहाँ पर A की वैल्यू दी हुई है आपको, देखो A इज 1.5, तो यहाँ रख देता हूं मैं 1.5, राइट। B आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ B की जगह रख दो 3 सेंटीमीटर। C इज 1 सेंटीमीटर, तो C की जगह रख देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो बच जाता है D, जिसको हमें ढूंढना है, D मतलब ये EC हो गया, तो D की जगह पे चेंज करके लिख देते हैं EC। ओके, यहां लिख देता हूं मैं EC। नाउ इट इज वेरी इजी, 1.5 का डबल होता है 3, तो 1.5 1 जा, ये 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और आंसर आ जाएगा EC मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल बी EC, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 का EC के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, सो EC इज 2, खत्म। 2 सेंटीमीटर, हाँ यूनिट लिखना मत बोलना, नहीं तो एक छोटे से क्वेश्चन में मार्क चला जाएगा। क्लियर। अब वैसे ही बाजू वाला फिगर है सेम, कोई उसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। देखो ये बाजू में जो फिगर है, इसके अंदर भी कुछ हमें क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। वंस अगेन इट इज गिवन DE इज पैरेलल टू BC, है ना, ये दिया हुआ है, देखो DE इज पैरेलल टू BC। तो अगर पैरेलल है तो फिर से मैंने बताया था आपको यही कंडीशन लगने वाली है, A B और ये हो जाएगा C और D, ठीक है, इधर वाले दोनों साइड C और D। तो हमने कंडीशन क्या रखी थी, अगर लाइंस पैरेलल हो, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है, ये आ जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, A बाय B इक्वल टू C बाय D, जो मैंने ABCD लिखा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, इन प्लेस ऑफ A हमें निकालना है AD, देखो वहां पे मेजरमेंट कुछ नहीं दिया है, सो वी विल सिंपली राइट AD। B की जगह हो जाएगा 7.2, ठीक है, इन प्लेस ऑफ B यहाँ पर हो जाएगा 7.2, इन प्लेस ऑफ C इट इज 1.8,
है ना, तो सी की जगह पे लिख देते 1.8 और जो डी है दैट इज 5.4, है ना, यही दिया हुआ ना, यस, so D is 5.4. यहाँ पर पहले जो कट रहा है वो कट कर देंगे। यहाँ पे देखो क्लियर सी बात है, डेसिमल से डायरेक्ट ही हम लोग देख के कट कर सकते हैं। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ये कट हो गया। देन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 7.2 से करोगे, सो ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी 7.2, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी 3 AD, राइट। सो 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से हटा देते हैं इसको, तो वो आ जाएगा डिवाइड पे। सो डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 3 से करोगे तो 2.4। Clear with this question? Any confusion? Is anyone having any kind of confusion? They can ask me right now. Okay, so let's move to next question. Now we have this E and F are point on side PQ. एक क्वेश्चन ये भी रखा हुआ है, इसको भी कट नहीं किया, ये भी कर लेते हैं। So it is given like this: E and F are point on side PQ and PR respectively of triangle PQR. एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं PQRC, जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। So this is PQ and R and EF, E जो है वो पॉइंट है किस पर है, PQ पर। यहां मान लेते हैं हियर एट दिस पॉइंट, यहां पर है E एंड F इज पॉइंट ऑन PR। देखो यहां पर PR पर पॉइंट है F। ओके, सो नाउ वी हैव टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। तो यहां पर एक लाइन इनको ज्वाइन करके बना दी है, हमें बताना है कि EF पैरेलल है या नहीं QR के, ये बताना है। ये कैसे बताएंगे, तो अभी कंडीशन बताया था, ये पैरेलल कब होगा, वही ABCD वाला रूल ले लो, इसको A मान लो, इसको B मान लेते हैं, यहाँ C और यहाँ D। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है, मतलब A/B इक्वल टू C/D हो जाए, इक्वल मिल जाए, देन दीज आर पैरेलल। अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये करके देखते हैं, क्वेश्चन आप लोग को आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं इतनी देर से। चलो यहाँ पर ABCD अभी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ सिंपली ये फर्स्ट क्वेश्चन से वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूं मैं। PE इज 3.9, तो PE मतलब यहां पर इस जगह पर लिख दूंगा मैं 3.9। समझ आ रहा है, एकदम क्लियर। देखो PE इज 3.9, EQ इज 3 सेंटीमीटर, सो EQ मतलब ये E से Q यहां पर है, देखो EQ, तो यहां पर लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर। PF इज 3.6, तो यहां बस वैल्यूज पहले रख दे रहा हूं मैं, ये हो गया देखो 3.6, और जो FR है दैट इज 2.4। ये एक क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी सब इजी है इसको, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये चेक करना था A/B इक्वल टू C/D, तो ये A है, दिस वन इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो A/B कितना आ रहा है पहले चेक करते हैं। A/B मुझे मिल रहा है 3.9 डिवाइड बाय 3। तो थोड़ा सा अगर इसको कट कर लें, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, 1.3/1 ये आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू C/D। ये C/D क्या आ रहा है देखते हैं। तो इसको डेसिमल में नहीं रख सकते, इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में ही कर देते, तो दिस विल बी 13/10। ओके, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 1 और उसके बाद एक नंबर है तो 0, 13/10 आ गया। सो C/D देखते हैं, C/D इज 3.6/2.4। इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 12 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये सीधा सीधा ही कट कर देते हैं। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। क्या दिख रहा है मुझे, दैट A/B और C/D इक्वल है क्या। नित्या वेरी गुड, आपने पहले आंसर दे दिया, यू सेड नो, राइट। सो A/B इज 13/10 और C/D इज 3/2, सो दिस बोथ आर नॉट इक्वल, और इक्वल नहीं है इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होंगे, नहीं होंगे। ओके, अगर इक्वल आता है देन EF इज पैरेलल टू QR, अगर इक्वल नहीं आता है देन पैरेलल नहीं है। ओके, सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन हियर, बाकी के दो आप लोग कर सकते हो यहाँ पर।
राइट। अगर ये केस अगर इक्वल आ जाता है यहाँ पर, अगर ये मेरा यहाँ पर 3/2 आ जाता, तो मैं क्या कहता, EF इज पैरेलल टू QR, बट ऐसा हुआ नहीं, दोनों सेम नहीं है, राइट। अगर दोनों सेम है एंड दे आर पैरेलल। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.3 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी पूरा तो ओमिट ही किया हुआ है ना। सो 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, we have to show that which similarity property will be used to show that these figures are similar। ठीक है, ये चीज, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज फॉर दिस, जिससे ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो, इफ दे आर नॉट सिमिलर तो हम लोग छोड़ देंगे उसको वहां पर। व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी? कौन कौन सी सिमिलैरिटी कंडीशंस होती है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। कितनी सिमिलैरिटी कंडीशन होती है? वन इज SAS, दो साइड प्रोपोर्शन में होने चाहिए और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। वन इज दिस। और कौन कौन सा है, फटाफट रिकॉल करो। ASA, ओके, देन AA, ओके, और एक है हमारे पास SSS, वेरी गुड, ओके। सो ये कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है ना। यही चार है हमारे पास। एक्चुअली AA भी है और AAA भी है, राइट, ये भी यूज होता है। एक ही बात है, हम 3 एंगल तक तो जाएंगे ही नहीं, 2 ही एंगल पे हो जाता है, ओके। सो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। हमारे पास है एंगल एंगल एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड, ये सब कुछ चीजें सारी जरूरी नहीं होती, इतने में भी हो जाता है। 2 एंगल्स, राइट, देन वी हैव दिस SSS सिमिलैरिटी, देन SAS भी है, और एक कोई छूटा तो नहीं है, आई डोंट थिंक बेटा ये वाला है। ये ऐसे है क्या? मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ चुका हूँ। दिस इज नॉट देयर, ओके, ये वाला नहीं है, ओके। दिस इज देयर इन कॉन्ग्रुएंसी 1, सिमिलैरिटी में नहीं होता, सिमिलैरिटी में 4 ही होते, ओके, क्लियर। अभी 9th में कराया ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये 4 ही होते हैं। ASA इज नॉट देयर नित्या, ओके, प्लीज टेक रिमाइंड ऑफ दिस, आगे काम आएगा आपको। सो लेट्स सी दिस, यहां पर मैं देख सकता हूं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, अगेन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों फिगर तो हो गए सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके। इसकी बात करें अगर फिगर की, तो क्या ये सिमिलर दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि देखो ये 2 वाला साइड और ये 4 वाला साइड, ये हो गया 2/4, कितना होगा, अगर रेशियो में लेता हूं तो मुझे मिल गया 1/2, ओके। देन अगर ये देख लूं तो 3/6, इसको भी अगर रेशियो में ले लूं तो भी मुझे मिलेगा 1/2, ओके। तो 2 साइड तो मुझे मिल गया जिनका रेशियो सेम है। और ये थर्ड वाला देखते हैं, 2.5 का डबल 5 है ना, तो 2.5 डिवाइड बाय 5, हाउ मच आई एम गेटिंग, 1/2। तो तीनों साइड जो है उनका रेशियो सेम है, सो दिस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS, okay. Now what about next question? Third one is, are they similar? यहां पर भी देखो, इफ दिस इज 3
दिस इज 6 डबल है, तो ये तो पहला तो मुझे मिल गया 3/6 जो है दैट इज, ये मान लेता हूं मैं ये 1/2 आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ भी मैंने देखा 2 का डबल 4, चलो ये भी मान लेते हैं एक बार के लिए, ये साइड भी है 1/2, बट ये रेशियो सेम नहीं है, देखो 2.7 और 2.5 ये तो नहीं मिल रहा। तो दो साइड के बेसिस पे ओनली टू साइड्स आर प्रोपोर्शन, देखो ये वाला और ये वाला, तो दो साइड के बेसिस पे देयर इज नो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो ये सिमिलर नहीं हुआ, राइट। दो एंगल होता तो हो जाता, बट दो साइड वाला कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 दिया हुआ है, इसको भी एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहां पर मैं देख सकता हूं ये जो इंक्लूडेड एंगल है, दिस इज इंक्लूडेड एंगल, हाँ, तो एंगल मैं बीच में लिख रहा हूं, देखो दोनों साइड के बीच में हमारे पास जो डेटा है वो इस साइड का है, इस वाले साइड का है, यहां भी ये साइड और ये साइड, तो मैं देख सकता हूं ये जो एंगल है दैट फॉल्स बिटवीन टू साइड्स, तो दिस इज इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल दोनों के इक्वल है, सो एंगल इज इक्वल। अब बात करते हैं साइड की, व्हाट आई कैन सी, ये साइड और ये साइड अगर ले लूं मैं, सो इट इज 5/10, चलो ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा बार बार ये ऐसे साइड क्यों ले रहा हूं मैं, तो मैं ऐसा ले रहा हूं, देखो अगर यहां से बड़ा वाला साइड ले रहा हूं 2.5 और 5, विच वन इज बिगर, दिस वन 2.51, तो यहाँ क्या होगा 6 और 10 ये वाला बड़ा, तो इन दोनों बड़े साइड को एक साथ ले रहा हूं मैं रेशियो में, सो आई गेट 1/2, बट यहाँ 2.5 है यहाँ 6 है, तो 2.5 और 6 डिवाइड करोगे तो क्या 1/2 आएगा, नहीं आएगा। वाई, क्योंकि अगर यहाँ 5 होता तो 1/2 आता, बट नीचे 6 है, सो आई विल नॉट गेट 1/2, ये नहीं मिलेगा मुझे, तो दोनों साइड का प्रपोर्शन में नहीं है, सो एक ही साइड, ऐसा कोई हमारे पास रूल है ही नहीं, अगर यहाँ पे हमें दोनों साइड मिलते तो ऐसे ऐसे यूज कर लेता, बट दोनों साइड तो हमें मिले ही नहीं इक्वल, तो सिर्फ एंगल इक्वल है, so there is these two triangles are non similar. What about this, similar, yes, देखते हैं, देखो this side is 3, this side is 6, ओके वहां तक ठीक है, this side is 2.5, this side is 5, वो भी ठीक है मुझे दिख रहा है, देखो 1 is 3/6, ठीक है, तो वो मिल गया मुझे 1/2, मैंने कहा ना यहाँ से अगर मैंने बड़ा वाला साइड लिया है, देखो 2.5 एंड 3, तो बड़ा कौन सा है 3 वाला, तो ये वाले ट्राइंगल से भी बड़ा वाला ले लेता हूं मैं, तो वो 1/2 रेशियो मिला, यहां से छोटा वाला लिया 2.5, तो इस ट्राइंगल से भी छोटा वाला ले लेते हैं दैट इज 5, तो इसका रेशियो भी मुझे क्या मिलेगा 1/2, बच गया अब एंगल, तो बच्चों एंगल देखो सीधी बात है ये इन दोनों साइड के बीच का एंगल है, ओके, तो अगर यहां पर ये दो साइड के बीच का एंगल लूं तो ये वाला होगा, और इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है ना, तो इन दोनों में सिर्फ दो साइड हमारे क्या हो रहे हैं रेशियो में आ रहे हैं, बट एंगल का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सो दो साइड के साथ हम सिमिलैरिटी नहीं दिखा सकते, सो एज ऑफ नाउ आई विल से दिस टू ट्राइंगल्स आर नॉन सिमिलर, ओके सिमिलर नहीं है। गॉट इट, एनी कंफ्यूजन, क्योंकि यहां पर देखो ये दो साइड के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल ये वाला है, तो यहां भी अगर 80 यहां पर दिया है गलत है, 80 अगर यहां दिया होता इस जगह पर, then I can say that these two triangles are similar, okay। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, तो यहां पर 80 डिग्री, यहां पर भी 80 डिग्री, बहुत बढ़िया, एक एंगल तो मिल गया मुझे। दूसरा एंगल अब देखो यहां 70 है यहां 30 है, क्या लगता है सिमिलर है या नहीं है ये दोनों फिगर, कैन यू से दिस टू फिगर्स आर सिमिलर, सी वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई बताएगा मुझे ये एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला दे तो होता है 180 डिग्री, राइट,
सो दिस इज 70, दिस इज 80, तो ये कितना होगा 70 प्लस 80 प्लस x, ये तीनों अगर ऐड कर दें, यस 30 डिग्री होगा ना, राइट। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, हमें तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 30 हो गया। वैसे यहां पर दो एंगल दिया है, तो ये कितना होगा, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, ये कहता है कि तीनों एंगल प्लस करोगे तो 180 डिग्री होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 70 डिग्री। वेरी गुड। तो इससे एक चीज क्या पता चली, देखो अब मैंने जब एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला, हियर इट इज 70, हियर आल्सो इट इज 70, हियर इट इज 30, यहां भी 30 आ रहा है, और 80 80, तो बाय ए प्रॉपर्टी दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसको ही एंड में प्रैक्टिस करना, बाकी सारे तो बड़े इजी है, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सीधा फिगर बेस्ड क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, देखो ये दोनों फिगर सिमिलर है, कौन सा फिगर, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, राइट। तो BOC इक्वल टू 125 ये हमें दिया हुआ है, ये देखो ये एंगल 125 दिया हुआ है। CDO इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। फाइंड DOC, पहले हमें निकालना है ये DOC एंगल, इसके लिए तो ज्यादा दूर हमें जाना ही नहीं है, अगर DOC हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हो गया लीनियर पेयर, देखो यहां से पूरा क्या हो रहा है, लीनियर पेयर। एक बार रिजॉइन करो बच्चों, एक बार रिजॉइन करो ऑन सेम आईडी। आई थिंक टाइम इज गोइंग टू ओवर, आई विल वंस अगेन स्टार्ट दिस, ओके, रिजॉइन द सेशन।